بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نشانك ونبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نشانك ونبتر صل لربك وانحر نشانك ونبتر. یہ دعائے قرآنی آپ دیکھیں، اسے پڑھیں تاکہ آپ کو پاس ہو، اللہ اس کی برکت آپ کو دے. اور اس طریقے قول ہے کہ میں رسول پاک کے غلاموں میں سے ہوں. ریفارمرز آف انڈیا کون ہیں؟ تو اس پہ آج ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. 3 ریفارمر ذہن میں آئے ہیں، اس لیے میں تینوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ دیکھ لیجیے شیخ یہ میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے، اس کے 4 کالم ہیں اور 3 لائنز ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. آپ اسے پڑھ لیجیے کہ شیخ احمد سرندی صاحب کی کو میں ساس معاف اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ شیخ احمد سرندی SAS MAF اس لیے کہتے ہیں. یہ مجدد الفسانی ہیں، ٹھیک ہے. یہ پہلے شخص تھے جو پہلے سمجھے کہ مجدد ہیں، فرسٹ آدمی جنہوں نے آواز اٹھائی اسلام کے لیے. ان کا کوڈ ہے PIR، ٹھیک ہے. جنہوں نے کام کیا، پی سے کیا، پروٹیکشن آف آئیڈینٹی آف مسلم. مسلمانوں کی آئیڈینٹی ختم ہو رہی تھی. یہ پیریڈ یاد رکھیے گا، شیخ احمد سرندی کا پیریڈ اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ کا ہے. اکبر پہلا بادشاہ ہے، پہلا بادشاہ بابر ہے، پھر ہمایوں ہے، تیسرا اکبر ہے اور چوتھا جہانگیر ہے. تیسرے اور چوتھے بادشاہ کا زمانے کی باتیں ہیں. بابر اور ہمایوں گزر چکے تھے، اکبر کا پیریڈ آخری چل رہا تھا اور پھر وہ جہانگیر آ گیا. اس پیریڈ میں ہوا یہ کہ اکبر کی بیوی چونکہ مسلمان نہیں تھی، اور اکبر نے سوچا ہندو، سکھ، پارسی ہیں اور کیا نام ہے اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جو کہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو وہ مقبول ہونا چاہتا تھا. شہرت ہر انسان کو پسند ہے. اس نے کیا کیا، اسلام کو ہٹا کے ایک نیا دین بنایا جس میں سب کو ایک کر دیا، سارے مذہب کو ایک کر دیا. اس کا نام رکھ دیا دین الہی. دین الہی کی وجہ سے سب خوش ہو گئے اور سب برابر حقوق مل گئے سب کو. ہندو مسلمان شادی کر رہے ہیں، ہندو عیسائی شادی کر رہے ہیں، سب یہ الاؤ کر دیا. ہر طرح کا اوپن ون مذہب فار آل، اس کو کہتے ہیں دین الہی. اور مسلمان اپنی آئیڈینٹی کھول رہے تھے. کوئی مسلمان نہیں لگ رہا تھا کہ جو مسلمان رسول پاک کا مسلمان تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا تھا، ہوتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ. تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو جگایا، ان کی آئیڈینٹی کو دوبارہ زندہ کیا. مغل امپائر جو تھا وہ کمزور پڑ رہا تھا اس لحاظ سے کہ وہ ہندوؤں سے کمپرومائز کر رہا تھا، سکھوں سے کمپرومائز کر رہا تھا، باوجود اس کے کہ اکبر بادشاہ مسلمان تھا، کمپرومائز کر رہا تھا. تو اس کو دوبارہ انہوں نے کوشش کی مضبوط کیا جائے مغل امپائر کو، تاکہ وہ ڈرے نہیں لوگوں سے. اکبر بادشاہ ڈر رہا تھا نا سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، پارسیوں سے، جبھی تو مذہب کو چینج کر رہا تھا اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو مضبوطی عطا کی. دیکھیں گے کیسے کی. اور ریفارمیشن کی، جو پریکٹسز اسلامی چینج ہو گئی تھیں ان پریکٹسز کو دوبارہ ریفارم کیا، صحیح کیا، رواج ہمارے کسٹم صحیح کیا، نارمز میں نے نارملائز کر دیا سب کچھ. مغل امپائر اس زمانے میں بہت فائنینشلی اسٹرانگ تھا. اکبر بادشاہ کے زمانے میں انڈیا کی اکانومی دنیا کی 34% اکانومی تھی. دنیا کی پوری دنیا 66% تھی اور اکیلا انڈیا 34% تھا چائنا کے بعد. چائنا کی 40% تھی. تو صرف چائنا اور انڈیا کی اکانومی جو تھی وہ 75% تھی دنیا میں. باقی تمام عرب، امریکہ اور یورپ، افریقہ ملا کے 25% تھی. اکبر اور جہانگیر کا پیریڈ ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا. ان کی اپروچ جو ہے یاد رکھیں شیخ احمد سرندی کی، وہ لڑائی جھگڑے کی نہیں تھی، تلوار کی نہیں تھی، بلکہ اس کی تھی تھیوری بیس تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اکبر بادشاہ کو بہت سمجھایا، جہانگیر کو بہت سمجھایا، اور جہانگیر تو ان کی باتوں میں آ گیا، اکبر بادشاہ نہیں آیا. جہانگیر بیٹا اکبر کا. پھر جہانگیر نے کیا کیا کہ ان کو اپنا شیخ احمد سرندی کو اپنا ایڈوائزر رکھ لیا، اور اس طرح اسلام بچ گیا. اور انہوں نے پھر وجہ جہانگیر کی یہ تھی کہ جہانگیر نے دیکھا کہ جب جہانگیر نے ان کو قید کیا تو وہاں پہ انہوں نے جیل کے اندر
तमाम कैदियों को, जेलर को, फौज को ये मुसलमान कर दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग और सही मुसलमान कर दिया था। तो जहांगीर ने सोचा कि दोस्ती कर लो और इनको, ताकि, और जाहिर बात है अब अकबर का रूल भी नहीं था, तो जहांगीर ने अक्लमंदी की। ये हो गया आपका शेख अहमद सरहदी के ऊपर। जो भी आपको आएगा आप लिख दीजिएगा, जो मैंने बता दिया। PIR याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, इम्प्रूव मुगल एम्पावरमेंट, और R से रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन माने बेहतरी, प्रैक्टिस, कस्टम और नॉर्म्स सब बेहतर कर दिए। लोगों की जिंदगियां वापस इस्लाम के मुताबिक हो गई। और मुगल एम्पायर चूँकि स्ट्रॉन्ग था फाइनेंशियली, तो वो तो स्ट्रॉन्ग ही था, और रूलर अकबर था, और उसके बाद जहांगीर आ गया, और बाबर और हुमायूं गुजर चुके थे। तीसरा रूलर है अकबर। ये हो गया क्लियर, इसको समझ में आ गया। अब शाह वलीउल्लाह का दौर आता है। शाह वलीउल्लाह का दौर बहुत बात का है, ठीक है। शाह वलीउल्लाह का दौर बहुत बात का है। तो ये शाह वलीउल्लाह 1700 में, शेख अहमद सरहदी जो है वो 1564 में, आप अंदाज़ा कर लें तकरीबन कोई तकरीबन 136 और 3 139 140 साल का फ़र्क है। 140 साल के बाद शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह सफ़ेद का असल नाम है सैयद कुतुबुद्दीन अहमद। ये नक्शबंदी हैं, और शाह वलीउल्लाह भी नक्शबंदी हैं। जैसे कि मैं बताऊँगा नक्शबंदी कौन होते हैं। नक्शबंदी वो लोग होते हैं जो विलायत का सिलसिला है। अभी मैं आपको बताऊँगा विलायत क्या होती है। तो नक्शबंदी विलायत का एक सिलसिला है जो हज़रत अबू बकर से मंसूब है, और विलायत के वैसे 4 जो है वो डोर्स हैं। जो 3 डोर्स हज़रत अली के से मंसूब हैं, बाकी जो हैं वो नक्शबंदी जो है वो हज़रत अबू बकर से है। तो ये 4 डोर्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में ज़माना था। शाह वलीउल्लाह का जो ज़माना था, उस ज़माने में मुग़ल एम्पायर गरीब हो चुका था। अंग्रेज़ों ने बेड़ा गर्क कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के ज़माने में ही अंग्रेज़ घुस गए थे, और ये तो शाह वलीउल्लाह तो जहांगीर के बहुत बाद पैदा हुए हैं। तो उस ज़माने में तो मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो चुका था, गुर्बत थी, और लोगों ने कुरान छोड़ दिया था पढ़ना, और क्या नाम है, बहुत ही नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, औरत के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी। बड़ा बुरा हाल हो गया था उस ज़माने में, मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल था। तो इन्होंने क्या किया, JARE जियर किया। अब जे आप याद करना है, जस्टिस सिस्टम को लेके आए कि इनकी इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो कभी भी यानी काफिर की हुकूमत रह सकती है, जालिम की नहीं। तो जुल्म जहाँ होगा वहाँ हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो पहले क्या उन्होंने कहा कि जुल्म ख़त्म करो, इंसाफ करो, कोर्ट्स जो है वो इंसाफ दें। एंटी यूजरी का मतलब है सूद को ख़त्म कर दिया, उनका सूद ना रखो, ठीक है। और ज़कात को लेके आए। राइट ऑफ वर्किंग क्लास, लेबर को पैसा दो उसके पसीना खुश्क होने से पहले ही, हदीस है। तो वर्किंग क्लास को पैसा नहीं मिलता था, वो उन्होंने किया। स्पाउस्ड विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, यानी अच्छी गवर्नेंस, यानी अच्छा सिस्टम हुकूमत का उन्होंने बनाया। और उनका कहना भी ये था, ये JARE जो है वो पिलर्स होते हैं किसी भी इस्लामिक सिस्टम के। इसलिए 4 चीज़ों को लेके आओ, इनका 4 चीज़ों पे जोर था। JARE समझिए, जस्टिस, एंटी यूजरी, वर्किंग ऑफ राइट्स ऑफ वर्किंग क्लास, और स्पाउस्ड विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। इन्होंने कहा, इन्होंने 51 बुक्स लिखी। सबसे अच्छा कमाल ये था कि अब तक जो कुरान पढ़ा जा रहा था वो अरबी में पढ़ते थे और कोई समझता नहीं था। यानी हमारे फैमिली के बुजुर्ग भी जो उस ज़माने में जिंदा थे वो अरबी में कुरान पढ़ते थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। और इन्होंने फ़ारसी, क्योंकि उस ज़माने इंडिया में फ़ारसी ज़बान चलती थी, आपको मालूम होगा, अंग्रेज़ों के आने से पहले। जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत छीनी है वो तो 1857 में छीनी है। उससे पहले 2 ज़बानें थी इंडिया में। आम लोगों की ज़बान उर्दू थी, और हुकूमत जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़बान थी वो पर्शियन थी, ईरानी। तो ईरानी ज़बान लोग जानते थे वहाँ पे। तो ईरानी ज़बान में कुरान को कन्वर्ट किया। इससे क्या हुआ, लोगों को कुरान के बारे में पता लगा पहली दफ़ा। पहले वो अरबी पढ़ रहे थे, पता ही नहीं था क्या पढ़ रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन लोगों ने एतराज़ किया कि अब क्यों उसको तर्जुमा कर रहे हैं, मत करें। लेकिन उन्होंने फिर भी लोगों का एतराज़ ये बर्दाश्त किया, इनिशिएटिव लिया। ये इनका इनिशिएटिव था कि मैं करूँगा, और उन्होंने किया, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। आज फिर आपके सामने फिर बाद में उर्दू में भी कन्वर्ट हुआ, और हम उर्दू में कुरान पढ़ते हैं तो समझ में आता है, अरबी में तो हमें भी नहीं समझ में आता। ये तो बहुत अच्छा काम था। उस ज़माने में पर्शियन ज़बान थी,
पर्शिया में उसने कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये इस तरह से इन्होंने 51 किताबें भी लिखी, और इस मुसलमानों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतरी आई, और मुसलमान जो थे वो वापस अपनी उस ओरिजिनल हालात में आ गए। तो शाह वलीउल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सैयद अहमद बरेलवी साहब का जिक्र कर देते हैं, ये आखिरी इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पैदा हुए जो थे वो 1786 तकरीबन कायदे आज़म से 90 साल पहले पैदा हुए, कायदे आज़म से 90 साल पहले पैदा हुए, और कायदे आज़म की पैदाइश से तकरीबन 35 साल पहले मर गए। ठीक है ना, कायदे आज़म ये मरे, उसके 35 साल बाद कायदे आज़म पैदा हुए। कायदे आज़म 1876 में पैदा हुए। अच्छा भाई, ये इनिशिएटर हैं, इन्होंने जिहाद मूवमेंट को दिया। अब तक हमने पढ़ा था ये दोनों जो रूलर, जो दोनों रिफॉर्मर थे, शेख अहमद सरंदी और शाह वलीउल्लाह, ये थ्योरी बेस्ड थे, अब बातों से काम करते थे। इन्होंने तलवार उठा ली थी, ये जिहाद मूवमेंट को इन्होंने बहुत मजबूत किया। सैयद अहमद बरेलवी शहीद कहते हैं इनको, ये शहीद हो गए थे। मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट लेके आए, मुजाहिदीन से जंग करवाई, सिखों से इन्होंने बहुत लड़ाई की। और ये शागिर्द थे शाह अब्दुल अजीज़ के। शाह अब्दुल अजीज़ कौन है? शाह वलीउल्लाह का बेटा, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़े आलिम थे शाह अब्दुल अजीज़, उनके ये शागिर्द थे। मुग़ल एम्पायर के ज़माने में बहुत वीक थी, बहुत गरीब थी, प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जो तलवार से काम करते थे, ये तलवार का इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इनका कोड है मापीर। मापीर क्या है? मूवमेंट की पॉलिटिकल, रिलीजियस और मिलिट्री थी। ये सियासत की मूवमेंट भी थी, मजहबी मूवमेंट भी चला रहे थे, और तलवार की मूवमेंट भी चला रहे थे, मिलिट्री भी चला रहे थे। मिलिट्री बोले तो तलवार। अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाते थे। साइकोलॉजिकल बूस्ट पैदा किया इन्होंने अवाम के अंदर, लोगों के अंदर, यानी उनके जज्बात और उनके को जोड़ के रख दिया था, साइकोलॉजिकल बूस्ट। आजकल हमारे यहाँ शाहरुख खान ये काम कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में उलमा करते थे साइकोलॉजिकल बूस्ट। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी, पर्सनैलिटी के अंदर बड़ा उनका करिश्मा था, लोग उनको देख के इम्प्रेस हो जाया करते थे, माशाल्लाह। रिवोल्यूशनरी इस्लामिक एक्टिविस्ट थे, रिवोल्यूशन के, इनकलाब के कायल थे, ये इनकलाब बर्पा करना, ठीक है ना। तो ये इनकी क्वालिटीज़ हो गई। मापी याद रहेगा आपको, ये तो कोई ख़ास बात नहीं। हुआ ये कि 1821 में इन्होंने हज किया, हज करने गए, वहाँ से जो अरब था वहाँ से मुजाहिदीन पकड़ के ले आए, और फिर उन्होंने इंडिया तक ट्रैवल किया और देखा कि कहाँ कहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने पूरा इंडिया को सर्च किया, तो उन्होंने देखा कि NWFP एरिया में सिख जो हैं वो बहुत जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाई, और पश्तून जो लोग हैं वो NWFP में रहते हैं ना, पश्तून से के साथ मेरी गवर्नमेंट बनाई, और अपने आप को इमाम बना लिया। किसने? सैयद अहमद शहीद साहब ने। शुरू में पश्तून लोगों ने इनका बड़ा साथ दिया, इनको लीडर मानते थे, बड़ा इनकी बात मानते थे। जब इनकी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे हुकूमत बन गई और उनकी सिखों से इनकी टक्कर हो गई अच्छी खासी, तो उनकी बड़ी इज्जत भी बन गई, और सिख भी इनसे घबराने लगे। तो पश्तूनों ने देखा कि उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनका कल्चर बदला जा रहा है, क्योंकि पश्तून कभी शादी नहीं करता बेवा की। इन्होंने कहा कि इस्लाम कहता है बेवा की शादी होनी चाहिए, बेवा की शादी करो। पश्तून को गुस्सा आया। फिर शेयर जो था, प्रॉफिट जो बनता है इलाके का, उसमें उनको पश्तून को कम मिला। उन्होंने कहा भाई वाह, जगह हमारी और तुम ज़्यादा शेयर लोगे। ये झगड़ा माली शक्ल इख्तियार कर गया। पश्तून लोगों ने क्या किया, जहर देना शुरू कर दिया रात को सोते वक्त पानी के अंदर। किसको? सैयद अहमद शहीद की फौज को। सिख, ये सैयद अहमद शहीद जो थे, इनको एहसास हो गया सिख जो है वो पश्तूनों के साथ मिल गए हैं और हमें मार रहे हैं। ये भागे, सैयद अहमद शहीद दूसरे मुकाम पे कश्मीर पे जाके वहाँ पे भागकर वहाँ पे मैदान बनाए और जंग लड़े। बालाकोट के मुकाम पे जंग हुई, जिसमें सैयद अहमद शहीद साहब मार दिए गए, उनके टुकड़े टुकड़े करके पानी में बहा दिया। अब आगे उनकी खबर भी तो है, खबर सिंबॉलिक है जो मैंने पढ़ा है। सिख 10,000 सोल्जर थे, सैयद अहमद शहीद के पास सिर्फ 600 सोल्जर थे। जाहिर बात है शिकस्त होनी थी, हो गई, ठीक है ना। तो ये पश्तून का मसला था जो
मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद ये हो गया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। देखते हैं आगे है या नहीं। हाँ, जिहाद क्यों फेल हुआ? जिहाद की फेल होने की वजह ये थी कि लोकेशन NWFP थी, उनकी अपनी लोकेशन नहीं थी, दूसरी जगह जाके लड़ रहे थे, ठीक है ना। और सिख डोमिनेटिंग एरिया था वो। रंजीत सिंह लीडर था उनका, बड़ा जालिम बहादुर था। सिख जो थे वो बड़े क्रूल थे, ब्रिटिशर्स से ज़्यादा क्रूल थे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे। ये बेचारे समझे कि हम मुसलमानों को, पश्तूनों को साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, वो हमारे साथ देंगे। शुरू में तो साथ दिया, बाद में डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि पश्तूनों के अंदर कबीले बहुत हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, और फिर किसी उनके पश्तून के ऊपर हुकूमत करना बड़ा मुश्किल काम है। याद रखिए, उनके अपने अंदर बहुत अख्तलाफात होते हैं, ठीक है ना। फिर उनकी ट्रेडिशंस बिल्कुल अलग है, उनके तरीक़ाकार ज़िंदगी के पश्तून के अलग हैं बिल्कुल। विडोज़ मैरिज के वो खिलाफ थे, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको। शेयर स्टेट के अंदर जो शेयर मुनाफा था, उसमें वो उनको इख्तलाफ था कि हमें कम मिल रहा है, हमारा इलाका है। और कोई भी स्ट्रेटजी जब बनाते हैं ना, तो उसमें याद रखिएगा, जो मैं समझता हूँ कि कुछ गलती हो गई थी मुसलमानों से, वो ये कि अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सके जोग्राफिकल कंडीशंस को, मेंटेलिटी ऑफ द पीपल को, फिजिकल फीचर्स ऑफ द पीपल, कल्चर, इंटरेस्ट क्या है उन लोगों के, ये सब सोचे बगैर, समझे बगैर बहुत फास्ट काम किया मुसलमानों ने, जिसकी वजह से ये पश्तून के ख़िलाफ़ हो गए। फिर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक टाइम, एक स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, यानी स्ट्रेटजी कहते हैं एक पॉलिसी को, और उसको किस तरह से अमल किया जाए, इसमें भी ये फास्ट कर गए काम। तो इतनी तेज़ी से काम किया उन लोगों ने कि वो इख्तलाफ बढ़ गया। किसी का दिल जीतना इतना आसान काम नहीं होता है, हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मसला होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया जिहाद फेल इस वजह से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है ये 17 मिनट की वीडियो में आपको ये बता दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।